friends, today we are going to analyze the Ballad of Mulan. Sick, sick and again sick, sick. Mulan weaves, facing the door. You don't hear the shuttle sound, you only hear daughter's sighs. They ask daughter who is in her heart. They ask daughter who is on her mind. No one is in daughter's heart, no one is on daughter's mind. Hi friends, welcome to another video by the Tangled Learning Hub. Today we are going to understand the poem The Ballad of Mulan. This poem which I am going to discuss today is from grade 7 Oxford book. So first thing is to understand that what is the meaning of ballad. So the poem name is Ballad of Mulan. So ballad is basically a long song or a poem that tells a story. So when you will read this poem, you will feel like you are reading a story. So that's the meaning of ballad. And another thing, Mulan. Who is Mulan? Mulan is, her full name is Hua Mulan, and basically it is a character from the Chinese traditional stories. Chinese folk stories had this brave character, female character. Her name was Mulan. And why is she so famous? Because she fought for the honor, she fought for the respect of her country and family, especially her father. That when we will go through the poem, that we will come to know how she fought for the respect of her family and country. So this is the meaning of ballad, and this is the main character, Hua Mulan, and this is a Chinese story character. So let's begin with the first stanza. So this is the first stanza. Sick, sick is the sound of the weaving machine. So when the poem begins, it is shown that Mulan, जो main character है poem का, वो weaving कर रही है. Weaving means she is making cloth material from the threads. So she is using a weaving machine, और वो उस machine से कपड़े बना रही है और cloth material बना रही है, और ये sound sick sick ये उस weaving machine से आ रही है. So this is the starting of the poem. Mulan weaves, facing the door. You don't hear the shuttle sound. So before that, I'll show you the weaving machine. This is the weaving machine with the help of which you can make the cloth material. And she's using a shuttle. This is a shuttle. This one, wooden one. So what is a shuttle? This is also used in weaving. तो इसमें thread डाला जाता है और इस थ्रेड को एक साइड से दूसरी साइड तक पास किया जाता है while making the cloth. So she is using this, and let's get back to the stanza. Now Mulan is saying that मैं शटल यूज कर रही हूँ और शटल से आवाज आ रही है. आपको उस शटल की साउंड नहीं सुन रही, आपको सिर्फ जो मेरी सैडनेस है, सैड ब्रेथ है, आपको सिर्फ वो सुनाई दे रही है. They ask daughter who is in her heart. They ask daughter who is on her mind. So her parents are, she is talking to her parents that आपको शटल की आवाज नहीं सुन रही. You are just seeing the sad breaths of mine. और आप मुझसे पूछ रहे हो कि मेरे दिल में क्या है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है. So she is answering that
nothing is or no one is there in her mind or on her mind or in her heart. Now, which figure of speech has been used here? If you notice, these words, sound related words, sound of the weaving machine words were used. This figure of speech is called onomatopoeia. Now, these words are called onomatopic words. Now, what is the meaning of this? These are those words which are containing sounds similar to the noises they describe. For example, hiss of the snake. So hiss word is also onomatopic word. तो ये वर्ड जो एक्चुअल साउंड होती है उसके साथ मिलता जुलता होता है, तो इन वर्ड्स को हम ऑनोमेटोपिक वर्ड्स कहते हैं और इस फिगर ऑफ स्पीच को हम ऑनोमेटोपिया कहते हैं। तो इस पोम में और भी ऑनोमेटोपिक वर्ड्स यूज हुए हैं, वो हम नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। Last night I saw the draft posters. The Khan is calling many troops. The army list is in 12 scrolls. On every scroll there is father's name. Father has no grown-up son. Mulan has no elder brother. I want to buy a saddle and horse and serve in the army in father's place. So her parents are upset when they see that Mulan is upset. She's telling them that nothing has happened, and then she explains what is the reason of her sadness. Now Mulan is explaining the reason why she is upset. तो वो बताती है कि लास्ट नाइट, पिछली रात, उसने ड्राफ्ट पोस्टर्स देखे। ड्राफ्ट पोस्टर्स मीन्स रिटन ऑर्डर्स। रिटन ऑर्डर्स जो कि खान की तरफ से आए थे। खान कौन है? किंग है उस जगह का, एम्परर है। सो शी सेइंग खान ने जो ऑर्डर्स भेजे थे मैंने वो पढ़ लिए हैं, और वो ट्रूप्स को बुला रहा है। ट्रूप्स आर द सोल्जर्स और यू कैन से आर्मी। द किंग इज कॉलिंग फॉर आर्मी। द आर्मी लिस्ट इज इन 12 स्क्रोल्स। मीन्स लिस्ट है, उसमें नाम लिखे हुए हैं। 12 स्क्रोल आए हैं और हर एक स्क्रोल में मुलान के फादर का नाम लिखा हुआ है कि उसके फादर को भी आर्मी ज्वाइन करनी है। देयर इज़ अ फाइट, और उस फाइट देयर इज़ गोइंग टू बी अ वॉर, और उसमें उस वॉर के लिए उनको मेल मेंबर्स चाहिए। So for that they are calling Mulan's father again and again in all the scrolls. Now before that I'll show you what is a scroll. This is a scroll. So scroll is a written order on a rolled paper or a cloth. तो इस तरीके से ये पेपर का मटेरियल होता है या क्लॉथ भी यूज़ किया जाता है, और इस पे जो भी मैसेज आप लिखना चाहते हैं इस पे लिख के रोल करके आप भेज सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड अ स्क्रोल। तो इस तरीके से खान ने लिस्ट भेजी थी आर्मी के लिए कि ये लोग आर्मी को ज्वाइन करें, और उसमें मुलान के फादर का नाम भी था। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? व्हाई इज़ मुलान अपसेट? बिकॉज मुलान के फादर की एज ज़्यादा है, ही इज़ वीक। वो एज ज़्यादा होने के कारण ही इज़ नॉट वेल। तो अगर वो वॉर में जाते हैं तो वो फाइट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द रीज़न शी इज़ स्केयर्ड। वो अपने पिता को नहीं भेजना चाहती वॉर में। अब अनदर थिंग इज़, खान ने कहा है कि हर एक फैमिली से एक मेल मेंबर आएगा वॉर के लिए। तो अब मुलान की फैमिली में उसका भाई भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स उसके भाई की एज अभी छोटी है, तो वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता, और गर्ल्स भी आर्मी नहीं ज्वाइन कर सकती। तो इसके लिए जो एक मेंबर, मेल मेंबर बचा है, ग्रोन अप है, जिसकी एज भी सही है, वो है मुलान के फादर।
सो मुलान इज सेइंग कि फादर का कोई बड़ा सन नहीं है, बेटा नहीं है जो वॉर में जा सके, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है जो वॉर में जा सके. तो व्हाट डिसीजन विल शी टेक नाउ? शी सेज आई वांट टू बाय अ सैडल एंड हॉर्स एंड सर्व इन द आर्मी इन फादर्स प्लेस. तो वो डिसाइड करती है कि मैं खुद जाऊंगी आर्मी में, अपने फादर की जगह पे मैं अपने फादर को नहीं भेजूंगी, ही इज़ वीक, वो वॉर में नहीं लड़ पाएंगे. तो शी सेज मुझे सैडल खरीदना है और एक हॉर्स खरीदना है और मैं अपने आर्मी में जाऊंगी फादर की जगह पे. इस तरीके से मैं अपने फादर की रिस्पेक्ट भी बचा लूँगी, क्योंकि हर एक फैमिली एक एक मेल मेंबर भेज रही है. तो उसके फादर अगर नहीं जाते तो it will be disrespectful. That is why to protect the respect of her father, she says I will go. So saddle is the seat which is kept on the horse. Seat on the horse is called saddle. This I'll show you here. This purple one which you can see, I'm moving my cursor here. This is a saddle. So she decides to buy a horse and a saddle and decides to go and serve in the army. In the East Market, she buys a spirited horse. In the West Market, she buys a saddle. In the South Market, she buys a bridle. In the North Market, she buys a long whip. At dawn, she takes leave of father and mother. In the evening, camps on the Yellow River's bank. She doesn't hear the sound of father and mother calling. She only hears the Yellow River's flowing water cry, Seine, Seine. Now Mulan has decided she will go for the war, and what all preparations she has decided to do, what all preparations is she doing now. Let's see that. So she goes to the East Market to buy a spirited horse. Spirited means energetic horse. West Market, she goes to buy a saddle. Saddle picture I've shown you, it is a seat on the horse. In the South Market, she goes to buy a bridle. Bridle is the headgear used to control a horse. Its picture I'll show you. This one, which is worn on the head of the horse to control it, this is called a bridle. Then in the North Market, she goes to buy a long whip. Whip is this one, which is used to hit the animals. This is called a whip. Animals are hit with it again to control the animals. At dawn, she takes leave. Now, dawn is the time of early morning. Dawn is the time of early morning, or you can say first light of the day. That time is called dawn. So, dawn time, she decides to go for the war. She takes leave of her father and mother, and she has left her home now. She reaches the Yellow River in the evening. So she decides to camp there, means tent lagake. She decides to stay there for some time in the evening. Yellow River is the second longest river in China, and it is also the 6th longest river in the world. Now when she camps near the river. At that time, she does not hear sound of her father or mother. Her father and mother were stopping her, but she did not listen to them. She is not hearing, or she's not diverting her attention. Her focus is on the war. So she's not listening to her father and mother. What she's hearing, she only hears the Yellow River's flowing water cry, Seine, Seine. So she's camping there. She's only able to listen to the sound of the flowing water of the Yellow River.
Sane word has been used here to describe the sound of the Yellow River water. So sane again, this is onomatopoeia has been used here. These are the onomatopic words. At dawn, she takes leave of the Yellow River. In the evening, she arrives at Black Mountain. She doesn't hear the sound of father and mother calling. She only hears Mount Yen's nomad horses cry, "Sioux, Sioux." She goes 10,000 miles on the business of war. She crosses passes and mountains like flying. Northern gusts carry the rattle of army pots. Chilly light shines on iron armor. Generals die in 100 battles. Stout soldiers return after 10 years. On her return, she sees the Son of Heaven. The Son of Heaven sits in the splendid hall. He gives out promotions in 12 ranks and prizes of 100,000 and more. The Khan asks her what she desires. तो इवनिंग टाइम पे वो येलो रिवर पहुंची थी और वहाँ पे उसने स्टे किया, कैंप पे टेंट में स्टे किया और नेक्स्ट मॉर्निंग एट डॉन, अगेन डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग वो येलो रिवर से दोबारा अपनी जर्नी पे चलती है। वो इवनिंग तक कहाँ पहुँचती है? ब्लैक माउंटेन। ब्लैक माउंटेन एक माउंटेन का नाम है जो कि मंगोलिया में है। मंगोलिया इज़ अ कंट्री इन एशिया जो कि चाइना और रशिया के बॉर्डर्स के साथ है। तो वो ब्लैक माउंटेन पहुंच जाती है। तो उस टाइम पे भी उसको अपने फादर की या मदर की आवाज़ नहीं सुन रही जो उसे वापस बुला रहे हैं। उसका फोकस, उसे सिर्फ उन घोड़ों की आवाज़ सुन रही है जो कि माउंटेन येन माउंटेन के पास से घोड़ों की आवाज़ सुन रही है। और जो वर्ड हॉर्सेस के क्राई के लिए यूज़ किया है दैट इज़ स्यू स्यू। अगेन स्यू स्यू इज़ onomatopoeia used here. These are the onomatopic words जो कि साउंड ऑफ द हॉर्सेस के लिए यूज़ हुआ है। उसके बाद 10,000 miles on the business of war. Again she moves, she travels, she goes to the war. बहुत सारे रास्ते पास करके, माउंटेन्स पास करके वो अपने वॉर स्पॉट पे पहुंचती है। Northern gusts carry the rattle of army pots. Gust means strong wind. Rattle means shaking sound of the metal. जब मेटल ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं तो उससे जो साउंड निकलती है दैट इज़ द रैटल साउंड। तो ये साउंड विंड, स्ट्रॉन्ग विंड है जो वो आर्मी जब मूव करती है तो आर्मी के जो मेटल की कवरिंग्स डाली होती है उनसे जो साउंड निकलती है रैटल साउंड, वो विंड के थ्रू मुलान के पास पहुंचती है। चिली लाइट शाइन्स ऑन आयरन आर्मर। सन इज़ शाइनिंग और उस सन की लाइट के कारण जो आर्मर आर्मी ने पहना हुआ है, आर्मर क्या होता है? मेटल की कवरिंग होती है बॉडी पे जो कि सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करती है। जनरल्स डाई इन 100 बैटल्स। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और बहुत सारे जनरल्स मीन्स लीडर्स, जो भी वॉर के इनके लीडर्स थे, बहुत सारे लीडर्स मर जाते हैं इस वॉर में। स्टाउट सोल्जर्स रिटर्न आफ्टर 10 years। तो 10 साल तक ये लड़ाई चलती है। और स्टाउट का मीनिंग वैसे तो फैट भी होता है, यहाँ पे स्टाउट का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव सोल्जर्स। वो 10 साल के बाद वापस आते हैं लड़ाई से। ऑन हर रिटर्न शी सीज द सन ऑफ हेवन। सन ऑफ हेवन वर्ड यूज़ किया गया है द खान के लिए। खान जो रूलर है, एम्परर है, उसके लिए सन ऑफ हेवन वर्ड यूज़ किया गया है। तो जब वो वापस आती है वो
रूलर से या आपका किंग से मिलती है। तो जो किंग है वो बैठा है अपने हॉल में, एक बड़ा सा कैसल है उसका, उस हॉल में वो बैठा है। तो सन ऑफ हेवन अपने बड़े से हॉल में, स्प्लेंडेड हॉल में कैसल के, वहाँ पे बैठा है और वहाँ पे वो अपने सोल्जर्स को प्रमोशन दे रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव वॉन द वॉर, वो जीत गए हैं, तो इसी खुशी में प्रमोशंस दी जा रही हैं। तो 12 रैंक्स में वो प्रमोशन दे रहा है एंड प्राइजेस ऑफ 100,000 एंड मोर। बहुत अच्छे प्राइजेस सोल्जर्स को मिल रहे हैं। तो खान मुलान से भी पूछता है कि तुम्हें क्या, व्हाट इज़ योर डिज़ायर, मीन्स तुम्हारी विश क्या है। तो एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स सिर्फ लड़के या आदमी ही वॉर के लिए जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं। तो इसीलिए मुलान भी एक लड़के के लुक में वॉर को ज्वाइन करती है। वो अपनी लड़की वाले पर्सनालिटी में वहाँ नहीं जाती है। Mulan has no use for a minister's post. I wish to ride a swift mount to take me back to my home. When father and mother hear daughter is coming, they go outside the wall to meet her, leaning on each other. When elder sister hears younger sister is coming, she fixes her roge, facing the door. When little brother hears elder sister is coming, he whets the knife, quick, quick, for pig and sheep. I open the door to my east chamber. I sit on my couch in the west room. I take off my wartime clothes and put on my old-time clothes. Facing the window, she fixes her cloud-like hair. Hanging up a mirror, she dabs on yellow flower powder. She goes out the door and sees her comrades. Her comrades are all amazed and perplexed. Traveling together for 12 years, they didn't know Mulan was a girl. तो उस पे मुलान का आंसर क्या आता है? मुलान कहती है कि मुझे मिनिस्टर की पोस्ट का कोई यूज़ नहीं है, यूज़लेस है ये पोस्ट मेरे लिए। तो क्या विश मांगती है रूलर से? शी सेज कि मुझे एक स्विफ्ट माउंट चाहिए। स्विफ्ट माउंट मीन्स फास्ट, माउंट मीन्स हॉर्स। तो कहती है कि मुझे बस एक तेज़ घोड़ा चाहिए जो कि मुझे मेरे घर वापस ले जाए। तो रूलर एम्परर उसकी विश पूरी करता है और उसे एक घोड़ा दिया जाता है तो वो घर जा सके। और ये न्यूज़ उसके फादर और मदर तक भी पहुंच जाती है कि उसकी बेटी अब घर वापस आ रही है। तो वो सभी घर से बाहर जाते हैं और उसका वेट करने लगते हैं। एक दूसरे की सपोर्ट के साथ वो खड़े होते हैं और बाहर जाके उसका वो वेट करते हैं। अब देखिए लीनिंग ऑन ईच अदर का मीनिंग क्या है? दे पेरेंट्स आर, मदर एंड फादर आर लीनिंग ऑन ईच अदर। तो पहले ही वो ओल्ड थे, एज ज़्यादा थी, और अभी भी 10-12 साल के बाद मुलान वापस आ रही है, उनकी एज और ज़्यादा हो गई है और ओल्ड और वीक हो गए हैं वो। तो वो एक दूसरे की सपोर्ट के साथ बाहर आके खड़े होते हैं और मुलान की वेट करते हैं। When elder sister hears younger sister is coming, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी पोम की स्टार्टिंग में कि मुलान की एक बड़ी सिस्टर भी है, उसे भी जब मुलान के वापस आने की न्यूज़ पता लगती है तो शी फिक्सेस हर रोज मीन्स रेड पाउडर, जो कि इट्स लाइक अ मेकअप, वो ब्लश की तरह चीक्स पे यूज़ होता है। तो वो जल्दी से अपना मेकअप फिक्स करती है, गालों पे रेड पाउडर लगाती है एंड शी वेट्स फॉर हर सिस्टर। और उसका ध्यान भी डोर की तरफ है कि कब उसकी छोटी बहन वापस आए। तो अब मुलान का एक छोटा भाई भी था जो कि हमने पोम के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि उसकी एज छोटी थी इसलिए वो वॉर में नहीं जा सका था।
When little brother hears elder sister is coming, he gets very excited. बहुत खुश होता है कि मेरी बड़ी बहन वापस आ रही है. He whets the knife quick for pig and sheep. So whets means sharp करना. He is sharpening the knife. वो knife को sharp कर रहा है, तीखा कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो अपनी सिस्टर के लिए पिग और शीप मीन्स नॉन वेजिटेरियन डिशेस बनाना चाहता है पिग और शीप के साथ. तो उनको कट करने के लिए या उनको मारने के लिए वो अपना नाइफ शार्प कर रहा है. ऑलराइट, नाउ टाइम हैज़ कम. मुलान वापस आ गई है और ये डायलॉग्स मुलान की तरफ से हैं. I open the door to my east chamber. I sit on my couch in the west room. I take off my wartime gown and put on my old-time clothes. So she is back home. वो अपने घर पे वापस आ गई है. तो मुलान अपने रूम में जाती है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में उसका रूम या बेडरूम है. वहाँ पे वो डोर खोल के वहाँ जाती है. वहाँ पे वो कहती है कि मैं अपने काउच पे बैठती हूँ. काउच मीन्स सोफ़ा. वेस्ट रूम में, वेस्ट डायरेक्शन में जो रूम है वहाँ पे एक काउच है, सोफ़ा है, वो वहाँ पे बैठती है. फिर वो अपना वॉर टाइम गाउन, अब इतने सालों से वो एक सोल्जर की तरह लड़ रही थी, वहाँ पे एज अ बॉय रह रही थी, एक लड़के के जैसे उस लड़ाई में गई थी क्योंकि वॉर में लड़कियाँ नहीं जाती. तो वो एक लड़का बन के उस वॉर में गई थी. तो उसने वॉर वाले सोल्जर्स वाले कपड़े पहने हुए थे. तो इतने सालों के बाद अब उसने वो लड़ाई वाले कपड़े थे जो वो उतारे और अब वो अपने ओल्ड टाइम क्लोथ्स पहन रही थी. ओल्ड टाइम क्लोथ्स मीन्स जब वो लड़कियों की तरह पहले ड्रेसअप होती थी, लड़कियों वाले कपड़े पहनती थी. अब फाइनली इतने सालों के बाद उसने वो लड़कियों वाले अपने पुराने कपड़े पहने. फेसिंग द विंडो शी फिक्सेस हर क्लाउड लाइक हेयर. अब वॉर में उसके बाल भी बंधे होते थे, हेड उसका कवर्ड होता था. अब फाइनली शी इज़ गेटिंग बैक इनटू हर गर्ल्स लुक. तो उसके जो लंबे बाल थे, लंबे हैवी बाल थे, तो वो उसने ओपन किए, वो विंडो की तरफ देख रही है और अपने क्लाउड लाइक हेयर फिक्स कर रही है. मीन्स अपने बालों को सुलझा रही है, उनको खोल रही है. क्लाउड लाइक हेयर मीन्स जैसे क्लाउड होते हैं बड़े से हैवी से दिखने वाले, तो उसी तरह से उसके बाल भी बादलों की तरह थे, हैवी थे, सुंदर थे, हैवी थे. तो यहाँ पे बालों का कंपैरिजन क्लाउड के साथ हुआ है और लाइक वर्ड यूज़ हुआ है, क्लाउड लाइक हेयर. तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? क्लाउड लाइक हेयर में सिमिली यूज़ हुआ है क्योंकि लाइक वर्ड के साथ हमने क्लाउड और हेयर को कंपेयर किया है, तो सिमिली यूज़ हुआ है यहाँ पे. हैंगिंग अप अ मिरर शी डैब्स ऑन येलो फ्लावर पाउडर. तो एक मिरर लटकाती है वो, वहाँ पे मिरर में देखते हुए वो येलो फ्लावर पाउडर लगाती है. डैब्स मीन्स प्रेस करती है, हल्का हल्का पाउडर लगाती है वो अपने फेस पे, हल्का हल्का प्रेस करती है, डैब करती है. शी गोज़ आउट द डोर एंड सीज हर कॉमरेड्स. अब वो रेडी है, कपड़े चेंज कर लिए हैं, बाल खोल लिए हैं, मेकअप कर लिया है. नाउ शी इज़ रेडी. वो बाहर जाती है दरवाजे से और वो देखती है कॉमरेड्स खड़े हैं. कॉमरेड क्या होते हैं? जो फेलो सोल्जर्स होते हैं, जो आपके साथ लड़ाई में सोल्जर्स होते हैं, उनको कॉमरेड्स कहते हैं. तो हर कॉमरेड्स, उसके जो सोल्जर्स हैं, वो अमेज्ड और परप्लेक्स्ड हैं उसे इस लुक में देख के. तो वो सरप्राइज्ड क्यों है? अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड, परप्लेक्स्ड मीन्स पजल्ड एंड कंफ्यूज्ड. तो वो कंफ्यूज्ड, हैरान क्यों रह जाते हैं? बिकॉज ये मुलान उनके साथ 12 साल से थी, लड़ाई में भी थी, ट्रैवलिंग के टाइम में भी थी. तो 12 साल की ट्रैवलिंग में उन्हें ये नहीं पता लगा कि मुलान एक लड़की है, मुलान लड़का नहीं है और ये एक लड़की थी जो इतने सालों से उनके साथ
वॉर में लड़ रही थी, इतनी ब्रेवली लड़ रही थी और इसके साथ उन्होंने वॉर जीती है। और बहुत ही वो उसको देख के, उसकी ये लुक देख के वो बिल्कुल ही हैरान रह गए। तो ये थी स्टोरी मुलान की ब्रेवरी पे, कैसे वो अपने फादर के लिए उसने घर छोड़ दिया। लड़के को जाना था वॉर में, लेकिन उसके घर पे कोई लड़का नहीं था, भाई उसका छोटा था, फादर उसके वीक थे और अपने पिता को वो भेजना नहीं चाहती थी। तो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को भी बचाना था, इसलिए उसने शो किया कि वो एक लड़का है और वो लड़का बन के वॉर में गई और वॉर में फ़ाइट किया, जीते वहाँ पे वो। फिर वो वापस आई और अपनी लड़कियों वाले लुक में, और सभी हैरान थे उसको देख के कि ये इतनी ब्रेव लड़की हमारे साथ इतने सालों से थी। तो अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ और आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस डालूं इसके रिलेटेड, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसमें हमने जो फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस किए थे वो थे ऑनोमेटोपिया और सिमिली। और अगर कोई और डाउट हो, हमने वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस किए हैं इसमें, पूरी बैलेड स्टोरी हमने डिस्कस की है। कोई और सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।